نیٹورک لا رہا ہے ایک نواں انداز، نویں جدت اور نواں جذبہ۔ تساں دے پسندیدہ آرچز دے نال انٹرٹینمنٹ وچ ہونے جا رہا ہے زبردست اضافہ۔ ہن سنیو اور دیکھیو رنگا رنگ شوز، تجزیے، تبصرے اور خبراں، کشمیری، پہاڑی، گوجری اور دیگر مقامی زباناں وچ۔ آزادی کا جشن مناؤ ریڈیو تاوی اور سنا ایف ایم دے سوشل میڈیا تاوی۔ بس ٹیون کرو سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹورک، جتا ہر آواز ہے آزادی دی آواز۔ حسین جبل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے بوتے کر گئی چور کی درخت، لہو بہو کشمیر جوت نظیر اور ہر نئے کشمیر کی آواز سول ایف ایم کشمیر نیٹورک۔ Avail flat 50% and 30% off and celebrate Jashn-e-Azadi with Diners. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply. السلام علیکم۔ پروگرام چنارانی چانل میزبان شبنم شاد حاضر خدمت۔ ہاں جی، کیا اعلیٰ امید ہے کہ تسی سارے لوگ اللہ پاک دے فضل و کرم نال خیر عافیت نال ہسو اور دعا کہ اللہ تعالیٰ سارے کو اپنے حفظ و امان وچ رکھا، آمین۔ جمعۃ المبارک اور یکم اگست اللہ تعالیٰ سارے کو اپنے حفظ و امان رکھا اور یکم اگست مہینہ جڑا ہے آزادی دا مہینہ اور جشن آزادی واسطے بڑی جوش و خروش نال جڑیاں نو تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہر بچہ، ہر خواتین جڑیاں گھر دے اندر یقین کرو کہ جشن آزادی واسطے نا ایک بڑا گھر دے اندر بڑی بات چیت ہو رہی ہے، گل بات ہو رہی ہے۔ بچے جڑیاں نا اج ہی تو پلان بنا رہے ہیں کہ جشن آزادی تا 14 اگست اساں سن یہ والا سوٹ پانا اساں واسطے جشن آزادی دے پیج ہونے چاہیے اور یقین کرو کہ جدوں بچے کل دے اندر نا اسیاں گلاں کر رہے ہونے تا ایک قدرتی وطن دی محبت، وطن واسطے جڑی محبت ہے نا اس دا جذبہ جڑا نا وہ پاؤں دے نیز تو کہنگا سر دی چوٹی تک جڑا ہوندا نا ایک بڑا جوشیلا سمجھ کے نو کہ ایک جسم دے اندر ایک ایسی ارتاش پیدا ہوندی ہے کہ اس ملک تو قربان ہوواں جس ہن اساں کو ایک آزاد وطن دیتا اساں واسطے، اسی بالکل آزاد زندگی گزار رہے ہیں اور اس پار لوگوں کو پوچھو کہ جڑے لوگ غلامی دی زندگی گزار رہے ہیں، جڑے کھلگا گل نہیں کر رہے، جڑے کھلگا گل کرنے دا انہوں کو اختیار نہیں، کھلگا زندگی گزارنے دا اختیار نہیں، یعنی وہ اپنی منمانی نال کوئی چیز بھی نہیں کر رہے۔ برحال کشمیر دی آزادی ادوں تک ادھوری ہے جدوں اس پار کشمیری آزاد نہیں ہوئے اور پاکستانی اس وچ اپنا مکمل کردار ادا کرتے رہے سن۔ اساں دی آزادی انہاں کشمیری جڑے اس ٹائم ظلم و ستم دے پہاڑ انہاں دی سرا تے ڈھائے جا رہے ہیں، انہاں تو بغیر اس دی آزادی جڑی ہے نا، مکمل آزادی جڑی ہے نا اساں دی ادھوری ہے اور انشاءاللہ کہ وہ وقت دور نہیں جدوں پورا اس پار جتنے لوگ بھی ہیں کشمیر و پاکستان دا حصہ جڑا بہت جلد بن سی اور اس دن اج یکم اگست اور عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو اللہ پاک بڑی کامیابی و کامرانی نال ہمکنار کرسی۔ پہاڑی پروگرام چناراں دی چھاں جڑا میزبان شبنم شاہ تساں دی خدمت وچ حاضر ہاں۔ یہ پروگرام چونکہ ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو دن 11 تو لے کے 1 بجے تک پیش کیتے جلدا اور اس پروگرام دے اندر موضوع جڑے ہیں اسی ایسے رکھتے ہیں کہ جڑے تساں دی دلچسپی دا باعث بنن اور معاشرے دے اندر روزمرہ رونما ہونے والے ایسی چیزاں بھی اساں دی نظر ہوندی ہے کہ اسی ایسے موضوع تساں نال ڈسکس کراں کہ جنہاں دی معاشرے دے اندر اشد جڑی آ او ضروری آ اور آختے ہونے نا کہ اگر تساں دی دسی ہوئی گل تو ایک انسان بھی کامیاب ہو گیا، ایک انسان دی بھی فلاح ہو گئی ہے تو میرے حال ایک بہت بڑا اجر و ثواب آ۔
اور دعا کہ اللہ تعالیٰ سننے والے جتنے لوگ بھی ہیں اور جڑے اسی سنانے والے لوگ ہیں تو سندی خدمت موضوع کہن گانے اللہ تعالیٰ سارے کو اپنے ہاتھ حفظ و امان وچ رکھا اور انہاں گلاں باتاں جڑیاں اسی کر رہے ہیں بھلائی دیاں گلاں اور اچھائی دیاں گلاں اللہ تعالیٰ سارے دے پلے باندا. اور آختے انہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو نصیحت اور خود میں حافظیت ایسا نہیں ہے کہ سب تو پہلے انسان اسی جڑیاں گلاں تساں تک پہنچانے ہیں اساں دی کوشش ہوندی ہے کہ اسی بڑھ چڑھ کے انہاں گلاں تے عمل کراں انہاں وچ حصہ کہنا انہاں تے بڑھ چڑھ کے اسی انہاں تے عمل کراں اور اپنی عملی زندگی وچ انہاں کو اپناواں. اور جدھر جدھر تسی اساں دی نشریات سن رہے ہو ضرور اساں کو آگاہ کرو اپنی گل بات تو سنی سنائی گل بات جڑی اساں دی تساں تک بذریعہ نشریات پہنچ رہی ہے ضرور تسی اساں کو فون کال جڑی ہے تسی کر سکتے ہو اپنے کمنٹس تو آگاہ کر سکتے ہو. اساں دا پروگرام جڑا وہ لائیو چل رہا ہوندا. اور جمعے کا دن سب تو افضل ترین دنوں جڑا ہے جمعے کا دن سمجھا جلدا اپنے ضرور دعاواں دے اندر وطنی دفاع واسطے ضرور جڑی ہے وہ تساں دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیوا. اپنے موضوع کی طرف آنے تھوڑی جی موسم کی گل بھی کر کے نا کہ جڑا موسم ہے اج ایک دو دن تو جڑا حبس والا ہوئے تھا لیکن ساون کی رت جڑی ہے نا اپنی آخری مرحل کے اندر ساون جڑا اپنے آخری اختتام پذیر ہو رہا اور آتے ہونے نا کہ ہر موسم انجوائے کرنا چاہیے. سردی گرمی بہار اور خزاں کا جڑا ایک اپنا مزہ نا بعض لوگوں سے اپنے سردی گرمی بہار اور خزاں کا بھی اچھا خاصا جڑا نا انہاں لوگوں کی دلچسپی ہوندی ہے بڑی اچھی انہاں لوگوں کی گل بات ہو رہی ہوندی ہے بڑی اچھی یعنی بعض لوگ شاعری کرتے ہیں اور ساون کے موسم میں اکثر لوگ جڑے نا بڑے اکتائی دے ہوندے ہیں کیونکہ حبس ہوندی ہے گرمی ہوندی ہے اور اس موسم تو کوشش کرتے ہیں کہ بس کسی طرح جلدی جلدی یہ چیز گزر جلا موسم گزر جلا. بہرحال پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا. ہر موسم کا جڑا ایک اپنا رنگ ہر موسم کا ایک اپنی جڑی ہے نا ایک دلکش فریب جڑا نا دلکش مناظر اس تے نظر آ رہے ہونے اور تو کوشش کرنی ہے کہ ہر موسم تو لطف اندوز ہونا انجوائے کرنا پریشان نہیں ہونا. تھوڑے دن دی گل اور بڑا اچھا جڑا نا یہ سامن جڑا اچانک بارشاں بھی شروع ہو جلدی اور جل تھل ہو جلدا اور اگر باہر تھوڑی جی دھوپ نکل آوا تو حبس ہو جلدی ہے لیکن انجوائے کرنا ایسی ویسی کوئی گل نہیں. موسم جڑے نا آدھے جلدن اور گزریا موسم جڑا نا آنے والے موسم اور گزرے والے موسم میں بڑا پھر فرق پایا جلدا. لہٰذا جس حالت جو چیز چل رہی ہے انجوائے کرو اور ایف ایم سنو ایف ایم 89.4 دی ٹرانسمیشن نال یعنی جڑے رہو. آزادی کا اور سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک لا رہا ہے ایک نیا انداز نئی جدت اور نیا جذبہ. آپ کے پسندیدہ آرجیز کے ساتھ انٹرٹینمنٹ میں ہونے جا رہا ہے زبردست اضافہ. اب سنیے اور دیکھیے رنگا رنگ شوز تجزیے تبصرے اور خبریں کشمیری پہاڑی گوجری اور دیگر مقامی زبانوں میں. آزادی کا جشن منائیے ریڈیو پر بھی اور سنا ایف ایم کے سوشل میڈیا پر بھی. بس ٹیون کیجیے سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک. جہاں ہر آواز ہے آزادی کی آواز.
جی اپنے موضوع کی طرف بڑھساں کہ اج کا جڑا موضوع ہے وہ احترام انسانیت اور اساں ذمہ داریاں. ہر انسان زندگی دی کوئی سٹیج ہے اور اج جدید دور ہے، لیکن اس جدید دور دے اندر نا بہت ساری ایسی چیزاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ جتنی زیادہ دور دے اندر جدت پیدا آئی ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے، اساں سن ایک دوسرے نال ملنا جلنا چھوڑ دیتا اور ایک دوسرے دے احترام وچ بھی کمی آئی ہے. وہ کس طرح ضرور گل بات کر ساں کہ ہینڈرائڈ سیٹ تا آگے ہر گھر دے اندر بچے بڑے مرد خواتین سارے جڑے ہیں انہوں کولن. لیکن کدے کدے اگر تساں وہ یاد ہوا تو یہ چیز بھی ہوندی ہے سی کہ کسی شخص کی تیمارداری واسطے اسی سارے کام کاج چھوڑ گا اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور کہ بزرگ لوگوں کا بڑا اساں دے دلاں وچ احترام آسا اور بزرگ لوگوں کو اسی ٹائم کٹ گئے تا بڑیاں کہانیاں جڑیاں وہ سن رہے ہیں اور بڑی دلچسپ امیز گلاں ہونیاں اسیاں بڑی دلچسپی والیاں گلاں ہونیاں اسیاں. اور اپنی تو سنگو مثال دیواں کہ میری نانی جڑے اسے وہ اساں کو بہت زیادہ جڑا نا کہانیاں سناندے اسے اور یقین کرو کہ انہاں دیاں سنائیاں ہویاں جڑیاں کہانیاں نا وہ اج بھی اکثر ایسا ہوندا کہ جدوں کوئی درے بندہ تنہائی ہوئے بیٹھا تھا یقین کرو کہ انہاں دیاں ساریاں گلاں جڑیاں نا وہ دل و دماغ دے اندر بڑیاں یعنی امنڈ آندیاں اور پورا ایک پیراگراف جڑا ذہن دے اندر چل رہا تھا. اور یقین کرو کہ میری نانی جو واسے نا جنگ دے دوران دیاں گلاں بھی اساں کو دستے ہوندے ایسے کہ جدوں جنگ ہوئی اسی اس طرح چھپے ہیں، اس طرح اساں یعنی اپنے آپ کو محفوظ کیتا، اس طرح دی جنگاں سی کتنے لوگاں سن یعنی قربانیاں دیتیاں اپنے یعنی بچے انہاں دے قربان ہو گئے، خواتین انہاں دیاں قربان ہوئیاں. یعنی ہر اس ملک پاکستان واسطے نا ہر چھوٹے بڑے دیاں جڑیاں نا وہ قربانیاں. اور اج بھی دشمن کو ضرور اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر دشمن سن میری آنکھ نال بھی پاکستان دی طرف دیکھا تھا میری خیال اس کو اتنا کرارا جواب مل سی اور اس نال اتنا کچھ یعنی ہو جل سی کہ شاید وہ آنکھ اٹھانے دے لائق بھی نہ رہا. یہ ضرور اس کو پیغام کہ جشن آزادی دا مہینہ 14 اگست آ رہا اور بچے جڑے ہیں نا وہ بڑے یعنی سوٹ جڑے ہیں نا کپڑے اپنے اسپیشل ڈے واسطے جڑے ہیں نا وہ ڈریس بھی بنوا رہے ہیں اور یعنی مختلف بچوں کی ایک الگ جس طرح عید واسطے تیاری ہو رہی ہے اسی طرح جشن آزادی 14 اگست واسطے بھی وہ تیاری کر رہے ہیں بڑے بھرپور انداز نال. لیکن بچوں کو اس چیز تو بالکل روکنا ٹوکنا نہیں. بچوں دی ساری فرمائشاں جائز جڑیاں انہاں دیاں پوریاں کرنیاں کہ ایک بچوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ 14 اگست جڑا یہ دن آ رہا ہے اس کی کیا اہمیت اور یہ اساں واسطے کیا کہن کے آیا اور اساں کس ایک آزاد فضا وچ اساں سانس کس طرح کے دی ضرور انہاں کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے. اور گل ہو رہی ہے سی کہ احترام انسانیت کہ اج دا جدید دور اینڈرائڈ سیٹ اگرچہ سارا کچھ ہے لیکن تساں یہ چیز بھی دیکھی سی کہ جڑی چیز اسی ایک میل جول دا سلسلہ سو اساں ایک فون تک بالکل یعنی اس کی ایک حد جڑی ہے وہ قائم کر چھوڑی فون تک ہی صرف. اور اس کو اسی بڑے چھوٹے کو ایڈجسٹ بے شک ہی سہولیات بہت ہیں لیکن اساں یہ چیز بھی ضرور سوچنی ہے کہ اساں اپنے بزرگاں دا اپنے والدین دا اپنے عزیز و اقارب جڑے اساں تو احتراماً بڑے رشتے ہیں اساں انہاں دی کس طرح کیئر کرنی اس طرح انہاں دا کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے. صرف فون دے ذریعے نہیں ہے کہ فون اٹھایا اور دادا جی کو نانی جی کو یا کسی بزرگ کو کال کر چھوڑی تایا جی کو چاچا جی کو کال کر چھوڑی کہ ہاں جی میں بالکل اگر ہاں ایمرجنسی ہے ضرور کال کر کے پوچھ سکتے. لیکن دوسری طرف یعنی دوسری بار تو کوشش کرنی ہے کہ انہوں کو تسیں جل کا ملنا انہوں دی تیمارداری کرنی انہوں دی خبرگیری کرنی انہوں کو بہنا انہوں کو پوچھنا تاکہ احترام انسانیت کے اندر کوئی خلا پیدا نہ ہوا. کیونکہ اسی جو کچھ کر رہے ہیں نہیں اسی اپنے آنے والی جنریشن کو سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ بڑیاں دا احترام کس طرح کرنا چھوٹیاں نال کس طرح پیش آنا اور اساں ایک دوسرے دا خیال کس طرح کرنا ہمدردی کس طرح رکھنی ہے احساس تے رشتے کس طرح نبھانے اساں ہمدردی دے رشتے اساں کس طرح نبھانے کسی واسطے ہمدردی اساں کس طرح رکھنی ہے یہ چیز اساں خود جدوں اسی صرف جدید دور دے اندر موبائل فون نال ٹچ رہے ساں اور صرف موبائل فون کو ہی اسی یعنی اس دا منسلک رہے ساں اس نال رشتیاں تے یقین کرو کہ ایسے رشتے جڑے ہونے نا وہ یعنی کافی حد تک دور ہو جلدن. لہذا کوشش کرنی ہے اگر یہ جدید سہولت
غلط ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کو پازیٹیو کہن کے چلنا ہے ایسا نہیں کہ ہر ٹائم سالہ سال ਅਸੀਂ ایک دوسرے ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਏਡਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜੁਲਸਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜਸਾਂ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਸਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਾਲਰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक शुक्र अल्लाह पाक का आप सुनाएं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे आमीन 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 तंदुरुस्ती वाली और आफियत वाली जिंदगी से आमीन 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 आप सुनाएं आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ आपको बल्कि FM 89.4 की पूरी टीम को बिल्कुल बिल्कुल आमीन आमीन आपकी दुआएं यकीन करें हम इन दुआओं के बड़े मुंतजिर रहते हैं और कहते हैं ना कि सबसे कीमती लम्हा वो है जो आप किसी की दुआओं का हिस्सा बनते हैं बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश आपकी इसलिए मैं दुआ करती हूँ सबके लिए कि इतना खूबसूरत और इतना कामयाब शो जो है ना वो आपके अकेले की बात नहीं है ये पूरी टीम वर्कर ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल इताद इत्तेफाक जो होती है ना ये बड़ी बड़ी कामयाबियों की कुंजी है ये चीजें जी आज आपका टॉपिक इतना खूबसूरत है इतना मेरे दिल को लगा कि जिस चीज की कमी होती जा रही है कमी मैं खुद भी महसूस करती हूँ तो आप मैं कहती हूँ कि इस माशरे में हर घर का मसला है और इन मसलों को आप हवा की मैं कहती हूँ लहरों के जरिए जो आप दुनिया तक पहुँचाती है ना तमाम सुनने वालों तक पहुँचाती है ना जी जी तो अल्लाह ताला इनको सुनकर मेरे समेत तमाम लिसनर को अमल करने की तौफीक दे अल्लाह पाक आमीन 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 इसलिए मैंने प्रोग्राम में शुरू में ये कहा ना कि ऐसा ना हो कि वो एक मशहूर मुहावरा है कि इंसान वो बात दूसरों तक पहुंचाए जिस पे वो खुद भी अमल करता हो ऐसा नहीं है कि बस वो एक शो मिनट के लिए दूसरों तक अपने पैगाम तो पहुंचाता रहे मगर वो 10% भी उस पे ना उतरे मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी इस बात को सुने इस प्रोग्राम को सुनकर थोड़ा सा अपने आप खुद का जायजा ले कि हम किस जगह पर गलती पर हैं ऐसे ही है तो मैं कहती हूँ कि इसका जो है ना क्रेडिट FM 89.4 को जाएगा शबनम शाद को जाएगा बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है जज़ाक अल्लाह ये रोज़ाना की हमारी लिसनर है मैडम तो जज़ाक अल्लाह ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी मसरूफियत उसमें से टाइम निकाल के आप किसी को रोज़ाना टाइम दें ये बहुत बड़ी बात है मैं कहती हूँ कि आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी हमेशा आपने एक बहुत बड़ी जगह बना दी है सुनो FM 89.4 की टीम के अंदर अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे आमीन 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 शबनम जी मेरी कोई फरमाइश तो नहीं है आप अपनी मर्जी से कोई सा पहाड़ी गीत सुनाएं जी जी जरूर जरूर खुशी से सुनेंगे जी बहुत मैं आपको 10 मिनट बाद सुनाऊंगी अभी मेरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है जी जी मैं कह रही थी मेरी गैर हाजिरी ना लगे नहीं गैर हाजिरी गैर हाजिरी यकीन करें प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट होता है ना तो जैसे ही हम स्टार्ट लेते हैं ना तो हमें पता होता है कि अभी हमारी बेल जो है वो बजने वाली है बेल और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और जिस दिन बस आपके टॉपिक इतने खूबसूरत होते हैं ना
कि मजबूर होते हैं कि हम कॉल करें। नहीं कि बहुत हम शुक्रिया। वाकई सुन रहे हैं आपका बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। आप यकीन करेंगे हमारी मीटिंग्स के अंदर भी हम आपका नाम लेते हैं कि हमारी मैडम जो है रोज़ाना की लिसनर है और इतनी दुआएं देती हैं कि आज कब किसी के पास इतना टाइम कि वो किसी के साथ इतना जुड़ा रहे। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मैं उस दिन का मैं इंतजार करूंगी जब ये सारी ये FM 89.4 की आरती नहीं है, ये मेरी आरती है, बिल्कुल मेरे ऐसे ही। कश्मीर की आरती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही और है। इन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है हमारे आजाद कश्मीर के टैलेंट को उजागर करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान साइड में जो है ना, ये इस एरिया को अक्सर जो है ना, अक्सर मेरे सुनने में भी आया कि बैकवर्ड एरिया इसको तस्वर किया जाता है। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इतना खूबसूरत टैलेंट मैं कहती हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 89.4 ने प्लेटफॉर्म दिया और एक से बढ़कर एक आरती। और मैं कहती हूँ उनमें कितना टैलेंट छुपा हुआ है। उनका मुकाबला आप पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन के किसी भी सेना आरती से कर सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला दिन दुगनी रात अपनी तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी असां दे रोज़ाना दे लिसनर जेह्ड़े असें मैडम रोबीना, बहुत शुक्रिया कि अगर ये कॉल ना कर सकदा, यकीन करो कि बिल्कुल ऐसा लगदा है कि अज इसदे प्रोग्राम दी जेह्ड़ी रौनक आ ना वो कोई धीमी पड़ी दी आ। बहुत शुक्रिया अक्सान दिल दी अथा गहराइयां नाल कि अपनी मसरूफियात ते बाइस भी असां वास्ते स्पेशल जेह्ड़ा ना ओह् असां को लाजमी कॉल हर हाल विच करके असां दी खैरियत मालूम करदे न। सुनो FM 89.4 दी टीम दी खैरियत जेह्ड़ी ओह् मालूम करदे न और इतनियां बेशुमार दुआवां कि यकीन करो कि बड़ा जड़ा ना वो दिल जड़ा वो खुश हो जुलदा। बहुत शुक्रिया मैडम। अपने मौजू की तरफ बढ़सा कि अज का जड़ा मौजू असा एहतराम इंसानियत और असां दियां जड़ियां जिम्मेदारियां तो गलबात हो रही है कि एहतराम इंसानियत की अगर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर जरूर है, लेकिन असां कोशिश कर रही हैं कि ਅਸੀਂ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਮਾਲੂਮ ਕਰਸਾਂ, ऐसा हरगिज नहीं। हाँ किसी एमरजेंसी के बाइस ਅਸੀਂ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असां कोशिश करनी है कि अगर असां एक दफा काल की दूसरी दफा ਅਸੀਂ चंद कदम ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ और अपनी हमदर्दी अपनी एहसास यानी ਉਹਨਾਂ को एहसासियत ਦਾ यानी एहसास ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਾਵਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਅਕੇਲਾ ਜੜਾ ਨਾ ਆਖੇ ਜੁਲਦਾ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਐਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ इत्तेफाक इत्तेहाद ना होसी तो मेरे ख्याल है किसी भी चीज़ को कम यानी उसको पाने वास्ते उसके अंदर उस तरह की सलाहियत फिर नहीं होने लगी। तन्हाई ਜਿਹੜੇ लोग तन्हाई पसंद होने और अपने रिश्तियों तो जुड़े नहीं रहते उन्होंने को ललायत इख्तियार कर छोड़ते हैं। यकीन करो कि वो लोग इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो जुलते हैं और जितने भी कामयाब होने की कोशिश करें, जितना कुछ उन्होंने कोल हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर अकेलापन जड़ा ना लाजमी खटकता रहता। इस वास्ते कि अपने नाल जरूर जुड़े रहो और एहतराम इंसानियत है कि जदों तुसी किसी को इज्जत देसो तो सबको बढ़गा इज्जत जड़ा ओ दे रहे हो सी। ऐसा नहीं कि जे तुसी सिर्फ दूसरे को इज्जत देसो और वापसी हो तो सबको ना देसी। इसका मतलब है कि तुसी इज्जत जिड़ी दे रहे हो तुसी अपनी इज्जत करवा रहे हो। इंसानियत की बुनियाद एहतराम और इज्जत का कायम और इंसान अपने वजूद विच जड़ा मुनफरद और अल्लाह ताला की तखलीक है कि इस दुनिया में सब वो बराबर हकूक और इज्जत के नाल जीने दा अल्लाह ताला हक देता दा और ये हमारी बुनियादी असां दी जिम्मेदारी है कि असीं एक दूसरे की जिहड़ी है इज्जत एहतराम लाजमी करा। इंसानी फितरत और इज्जत का तलब जड़ा है इंसानी फितरत नाल और हर इंसान जड़ा इज्जत का तलबगार होता और इसका बुनियादी आका कि अगर किसी को हकीर समझा जुला या इसकी इज्जत नफ्स को मुजरू कीते जुला तो वह एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है, जिस तो समाजी मसाइल माशरे के अंदर जड़े ना जन्म वक्तन फवक्तन कहते होने। और इस्लाम सुन हर इंसान की इज्जत और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कीता, चाहे वो किसी भी मजहब नस्ल या कौम तो तलक रखता हो। और कुरान करीम में इरशाद आ कि हमने आदम की औलाद को यानी
इज्जत दी, हमने ही आदम की औलाद को इज्जत दी है। यानी ये कितना बड़ा एक इंसानियत का मकाम है कि सूरे असरा विच यानी इस तो वाज़े होता कि अल्लाह ताला सुन इंसान को उसकी तखलीक के नाल ही इज्जत भी अता की थी और असां को इस इज्जत का एहतराम यानी इस इज्जत का एहतराम जड़ा वो लाजमी करना चाहिए। फिर एक माशरती अमांगी जड़ी है जो असीं दूसरे की इज्जत कर रहे हैं ना माशरे विच मुहब्बत भाईचारा और अमन का माहौल जड़ा पैदा होता। इज्जत यानी देने तो और लोग करीब और ज्यादा आने और रिश्ते मजबूत होने और गलत फहमियां जड़ियां कम हो रही होने। अगर हर कोई दूसरे की इज्जत करा था एक नया एक यानी दिल के अंदर एक दुनिया जड़ी है ना उसका बसेरा बहुत आला हो सकता, दिल के अंदर बहुत ज्यादा जगह बन सकती है। दूसरों को इज्जत देने दे फवायद जड़े हैं ना बहुत यानी ज़हनी सुकून इज्जत देने नाल किसी को तुसी इज्जत देंदे उसका एहतराम करदे हो तो उसके दिल को सुकून मिलता और तहलकात के अंदर खुशहाली जड़ी आ और लाजमी आ रही होती है। एतमाद की तामीर होती है जो असीं किसी की इज्जत करते हैं तो उस शख्स भी असां दा बेहंता जड़ा भरोसा करने लगता है। इज्जत खुद मिलती है और इज्जत देना एक ऐसा अमल है जड़ा लोट का असां दे कोल आंदा जड़ा इज्जत देसी उया ही इज्जत पासी। और माशरे विच अगर तुसी इज्जत और एहतराम किसी दा ना कर सो तो माशरे विच नफरत और फासले पैदा हो सन, इंसानियत ते रिश्ते जड़े ना कमजोर हो जुल सन, इंसान दी अपनी अखलाकी और रूहानी तरक्की जड़ी है ना और रुक जुल सी। हर इंसान दी इज्जत करना सिर्फ असां दा इखलाकी असां दा यानी असां दी अपनी एक इखलाकी जिम्मेदारी है बल्कि ये एक मजबूत और खुशहाल माशरे दी बुनियाद भी है। और असां को दूसरे दी खूबियों को भी तस्लीम करना चाहिए और उनकी इज्जत को कबूल करना चाहिए। इज्जत देने तो न सिर्फ दूसरे की जिंदगी विच मस्बत तब्दीली ला सकते हैं असीं बल्कि अपनी जिंदगी विच भी खुशियां दा इजाफा कर सकते हैं। असां दा फर्ज है कि असीं दूसरे की इज्जत करा और दूसरियां को भी इसी चीज दी असां को यानी उन्हां नाल भी असां को तवक्को रखनी चाहिए कि असां दी इज्जत करन। और याद रखो कि इज्जत एक ऐसा तोहफा जड़ा जितना ज्यादा देसो तुसी उतना ही यानी आगे जड़ा ओ बढ़ रहे हो सी। लिहाजा कोशिश करनी है कि इज्जत का दायरा कार जड़ा ना वो कायम दायम रहना चाहिए। इज्जत के अंदर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जो तुसी किसी दूसरे की इज्जत कर रहे होंदे हो इसका मतलब है कि तुसी खुद अपने वास्ते इज्जत और एहतराम का दायरा कार चुन रहे होंदा है। असी बहुत सारिया ऐसी चीज़ां भी जिंदगी के अंदर असां को नजर आ रही होनी कि बहुत जगह तो असी बड़े यानी ना चाकू चौबंद होकर रहते होने बड़े इज्जत और एहतराम के दायरे तो हट का भी असी बाज दफा अंदर ऐसी खुंदक पाली दी होती है कि असी छोटा या बड़ा कुछ भी है यानी उसको असी एक बदले के तौर पर ना दिख रहे होने कि फलाम वक्त अगर इस मेरे नाल ऐसा किया असा भी ऐसा करना। एक छोटी जी ब्रेक की तरफ जुलसा फिर वापस बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानब। योम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त के मौके पर हमारी खसूसी नशरियात पेश की जा रही है। इस मौके पर सुन एफएम कश्मीर नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए और मुहब्बे वतन कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। सुनिए, समझिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए सिर्फ सुन एफएम कश्मीर नेटवर्क के साथ। 5 अगस्त 2019 उस यादगार दिन को जब भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों का हक आज़ादी ना दबान की मजीद मजमूम कोशिश की। मुहब्बे वतन कश्मीरी आज भी अपना हक खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। कैदोबंद, कर्फ्यू और पाबंदी मगर आवाज दबाई नहीं जा सकती। योम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त का मौका पर हमारी खुसूसी नशरियात पेश की जा रही है। इस मौका पर सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क का नाल जुड़िया रहो और मुहब्बे वतन कश्मीरियों की आवाज बढ़ो। सुनो, समझो और आवाज बुलंद करो सिर्फ सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर। जश्न आजादी और
बीमार का हक 14 अगस्त 2025 के सिलसिले में सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क मुनफरिद नोयत के नगमों पर मबनी मुकाबले का इनेकाद कर रहा है। 1 अगस्त से 13 अगस्त दोपहर 12 बजे तक अपने मोबाइल कैमरे से अपनी खूबसूरत आवाज में मेरी नगमा रिकॉर्ड करें और सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर अपने नाम और इलाके के साथ हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेजें 05822532379। मुनफरिद नोयत के इस मुकाबले में कश्मीर समेत मुल्क भर में और बैरून दुनिया से मर्द, खवातीन और बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। Avail flat 50% and 30% off and celebrate Jashn Azadi with Sohai by Diners. Hurry up and visit store now or shop online at sohai.com. Terms and conditions apply. 5 अगस्त 2019 वो स्या दिन जब भारत ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करके कश्मीरियों की हक आज़ादी को मजीद दबाने की मजमून कोशिश की। मुहिब्बे वतन कश्मीरी आज भी अपने हक खुद आरादियत की जंग लड़ रहे हैं। केदोबंद, कर्फ्यू, पाबंदियां, मगर आवाज दबाई नहीं जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त के मौके पर हमारी खसूसी नशरियात की जा रही हैं। इस मौके पर सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए और मुहिब्बे वतन कश्मीरियों की आवाज बनिए। सुनो, समझो और आवाज बुलंद करो, सिर्फ और सिर्फ सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर। 5 सब भुला के फिर भी चला मैं, सब भुला के। जी 5 अगस्त और 14 अगस्त वास्ते स्पेशल नशरियात जिहड़ियां और सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क तो पेश कीते जो सन मुख्तलिफ आरजेज और मुख्तलिफ ज़बाना विच तुसां वास्ते नशरियात जिहड़ियां स्पेशल शोज जिहड़े ओह पेश कीते जो सन सुनो एफएम 89.4 दी टीम नाल जुड़े रहना और अपनी मौजूदगी दा एहसास जिहड़ा ओह जरूर दिलाना। इंसान और जिम्मेदारियां असां जिम्मेदारियां इज्जत तो बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन ये चीज भी सोचनी है कि असां जिम्मेदारियां जड़ियां किस तरह दी जिम्मेदारी इंसान की एक अमरियाजी सिफत और ऐसी सिफत जिस तो वो बाहर तो लेने तो पहले खुद अपनी फितरत इंसानी तो हासिल करता। हर इंसान को किसी न किसी सूरत में जिम्मेदारी का एहसास होता और तबीयत जितनी ज्यादा पाकीज़ा होती है जिम्मेदारी का शऊर भी उतना ही ज्यादा होता और जिम्मेदारी का एहसास हर इंसान को होता और इंसान यानी होने की हैसियत तो असं अपनी बेहतर जिंदगी विच उसको पूरी तरह अलग नहीं हो सकते लेकिन इस गल तो इनकार नहीं किए जा सकता कि एक शख्स की बनस्बत दूसरे विच शहूर जड़ा मुख्तलिफ होंदा और जदों असं अपनी ज़मीर की गल करते हैं तो उस तो मुराद असां दे अंदर छुपा होया शऊर होंदा जिसका हमारा असां दे सलूक को सही रुख देने विच बड़ा किरदार है और इसी वजह तो यानी ये बहुत सारी जड़ियां चीज़ां ये उमड़ इंसान अगर अपने ज़मीर नाल कुछ सवालात करा तो उसको बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां ना उस सामने नजर आ रही होंगी। जिम्मेदारी की बुनियाद जड़ी है बेदार आज़ादी ता मबनी और बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं कि इंसान अगर उसका कोई दीनी और इखलाकी जिम्मेदारियां आयद होवन और फैल दे सादर होने तो पहले ही उसके कोलो या बाद विच सिर्फ अपनी जिम्मेदारी दा सबूत ही उसको देना जरूरी नहीं बल्कि उसका पाबंद होना भी इंतहाई जरूरी है। और इस्लामी तस्वर भी जिम्मेदारी जड़ी है फर्दी होती है लिहाजा एक शख्स दूसरे शख्स का बोझ बिल्कुल ना उठा सी क्योंकि फरमाया गया कि हर एक निगरान और इसते महते तां दे मतलब उसको सवाल किते जुलसी और हाकम निगरान और इस तो सवाल उसकी रैयत के बारे में जो सी और इंसान अपने घर दा निगरान और उस तो उसकी रैयत के बारे में भी पुछगछ किते जुलसी और उसकी रैयत के बारे में सवाल हो सी खादम अपने आका दे माल दा निगरान और उस तो उसकी रैयत के बारे में सवाल हो सी और तो यानी तुम में से हर शख्स निगरान और उससे उसकी रैयत के बारे में जो है वो सवाल किया जाएगा। इसी वास्ते आते हो ना कि इंसान को अपने कम नाल बड़ी मुखलसी होनी चाहिए और इंसान अगर जिधर भी काम काज कर रहा हो या कोई जॉब कर रहे
ਰਿਹਾ ਹੋਵਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਦਫਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਹੋਵਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ को दे रहे हैं मुस्तकबिल भी दे रहे हैं कि अगर जो कुछ असी बोसा तो कल असी वो चीज़ कट सावी अगर असी बच्चों को हराम कमा के खिलासा तो कल बच्चे यकीन करो कदे भी सीधे रस्ते तक गामजन नहीं होने लगे उन्होंने दी कोशिश हो सी कि अगर मेरे वालदैन सुना हराम का एक लुकमा भी उन्होंने अंदर गया तो होया ना यकीन करो कि वो कदे भी भलाई दी तरफ जड़े वो गामजन नहीं होने लगे बल्कि कुदरती तौर पर कि वो कोशिश कर सन कि असा रस्ते तो भटकना अपने मस्ते ऐसे ऐसे मौके ढूंढने कि जिस विच असां को बगावत मिला जिस विच असां को बुराई मिला इसी वास्ते आख्या जुलदा कि अपने कम नाल इंसान को हमेशा मुखलिस रहना चाहिए और उस विच ध्यानदारी जिहड़ी है ना बहुत ज्यादा जरूरी है असां दी जिम्मेदारी है कि असां कोल अगर जे असां कोल उता कोई दिखने वाला है या नहीं लेकिन अगर असां को जिहड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है असीं उसको बड़े असां दी कोशिश होनी चाहिए असीं उसको ऐसे तरीके नाल हर हाल विच जिहड़ा ओ पूरी करां उसको हर हाल विच ऐसे तरीके नाल निभावां ये चीज़ जिस इंसान के अंदर पाई जुलदी है यकीन करो कि कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है और वो थोड़ी तो यानी उस तो भी मुतमैन रहता और अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करदे कि उसको इतना अता कर छोड़ता कि शायद वो देने वालियां विचों हो जुलदा असां दी जिम्मेदारी है कि असीं माशरे दे अंदर रहंदे होया एहतराम इंसानियत दे पाबंद होने दे नाल नाल असां को चाहिए कि असीं अपने अंदर भी ऐसी खूबियां पैदा करां ताकि असीं खुद अपनी औलाद के सामने रोल मॉडल होवां असीं खुद माशरे के सामने रोल मॉडल होवां ताकि वास्ते ना इज्जत देसो तो वापस इज्जत गनसो अगर कोई असीं किसी को बदइखलाकी नाल बुला रहे हैं बदइखलाकी नाल पेश आ रहे हैं क्या हुआ असां दी कितनी ही इज्जत करसी कितना ही एहतराम असां को करसी इसी वास्ते आख्या जुलदा कि सबर बर्दाश्त जड़ा ना वो जिंदगी दे यानी सब तो अहम पहलू होने चाहिए जिसके अंदर जिस औरत के अंदर जिस मर्द के अंदर मेरे ख्याल सबर आ बर्दाश्त आ वो कामयाब तरीन मर्द भी है कामयाब तरीन औरत भी है बेशक तुसी अपनी हर चीज़ तुसा नाल अगर कोई नाइंसाफी हो रही है कोई तुसा नाल यानी ज्यादती हो रही है तुसी अल्लाह दी रजा समझगा उसको छोड़ दो कि शायद ये मेरे नाल अल्लाह दी हाँ इसको पुछ गिछ जिहड़ी है वो लाजमी हो सी असी ये है ना कि दुनिया के अंदर ही असी बड़िया बड़िया चीज़ां करके दे हैं कि नहीं जब तक असा बदला नहीं करना तब तक असा सुनना अगला सांस नहीं करना कि मैं हर हाल आखते होने ना कि अगर तुसी किसी को कोई भारी गल भी मनवाते हो ना तो इखलाक मतलब जुबान के अंदर चश नहीं होनी चाहिए मिठास होनी चाहिए ताकि तुसी अपनी गल भी उस तक पहुंचा सको और अगला बंदा इनकार भी ना कर सका यानी इतनी मीठी जबान होनी चाहिए है लिहाजा कोशिश करनी है कि असा सुन डंडे के जोर तक कोई पैगाम अपना नहीं देना बल्कि असा कोशिश करनी है कि असा बड़े प्यार मुहब्बत खलूस नाल एहतराम दे दायरा कार दे अंदर रहंदे होए इज्जत करदे होए असीं अपना पैगाम भी दूसरे तक पहुंचाना और उसको यानी उसके दिलो दिमाग विच यानी एक ये चीज़ भी जरूर असां पानी है कि यार उन्हें गल ही इस तरह की उन्हें सुन पैगाम यानी मेरे नाल गल ही की कि मैं इनकार ही नहीं कर सकिया यानी आखते ने ना समझाने का भी एक तरीका कार होता है ऐसा नहीं कि डंडे ते जोर तो तुसीं बेचलो उसका हर गल मुसलत करो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता उसके डंडे के खौफ की वजह तो मार की खौफ की वजह तो वो गल तुसां दी सुन के ना लेकिन उसके दिल भी तुसां से इज्जत और एहतराम जड़ा कभी भी नहीं रहने लगा इसी वास्ते अपने कम नाल मुखलस लो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके नाल निभाओ ये असां दा फर्ज है माशरे के अंदर रहंदे होया और मुसलमान होने के नाते एक इंसानियत एहतराम करने के नाते असां को इस्लाम हमेशा अखुवत भाईचारा मसवात का दरस दे रहा अदलो इंसाफ का दरस दे रहा दयानतदारी का दरस दे रहा यानी अगर असीं किसी की दिल आजारी करसां दा असां को नुकसान होसी उसदा असां कोलों पुछ गछ होसी अगर असीं कोई बने असां कोल कोई ओहदा लेकिन असीं उसते ओहदे दा लेकिन छोटियां को भी ये चाहिए कि अगर असां दा कोई बड़ा बैठा था उस कोलों भी पुछ गछ होसी अगर उस सुन असां दा कोई जिम्मेदारियां पाई दियां असां सुन उसदा भी एहतराम करना उसको भी ऐसे तरीके नाल निभाना और जदों दोने फरीक आपस विच ना बैठ के मुशावरत नाल यानी एक अच्छी गलबात एक अच्छी गुफ्तगू करगा अपनी चंद चीज़ां जिम्मेदारियां निभा सन ना एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रख सन एक दूसरे नाल एहसास का रिश्ता रख सन तो फिर जुलगा ही एक टीम वर्क बनती है फिर जुलगा एक घर के अंदर भी निज़ाम इसी तरह बनता तुसां देखियो सी कि माशरे के अंदर रहिंदे होया बड़ियां अजकल बड़े फितने फसाद घर के अंदर लड़ाइयां झगड़े जिहड़े हैं वो बड़े अरूज तन क्यों कि घर के अंदर अगर 8 तो 10 बंदे हैं एक
ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੂ ਆ, बेटी है जो भी है, अगर उसका काम है कि किचन की उसने जिम्मेदारी निभानी है तो फुल किचन के अंदर होसी और उसको इस चीज का यानी मौका ही ना मिलसी। और घर वाले भी सोचन कि नहीं ऐसा सोने मऊ तो ब्याह के आंदी थी, इसका काम ही किचन का, असा को खाना पका के देना, असा दी खिदमत करनी, असा दी देखभाल करनी। क्या आया वो भी किसी की बेटी है, उसका भी यानी हक है कि जिंदगी गुजारने का, साशा कहने का, साशा लेने का। लिहाजा कोशिश करनी है कि असी इकट्ठिया रहते हुए एक दूसरे का ख्याल ना कर सा, एक दूसरे की हमदर्दी ना रख सा, एक दूसरे नाल एक दूसरे की जिम्मेदारियों को ना देख सा, एक दूसरे का हाथ ना बटा सा, तो माशरे के अंदर वक्तन फवक्तन बुराइयां जन्म कर सन, फितने फसाद जन्म ले सन, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो सी। और छोटिया छोटिया गल्लां तो एक माशरे के अंदर इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो जुलसी कि एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जुलसी। और माशरे के अंदर रहते हुए ना घर के अंदर का माहौल तेसनेस हो गया जुलसी, फिर उसके अंदर बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जुलदियां, फिर उनके घर के अंदर यानी सुकून जड़ा पैदा नहीं होता, डिप्रेशन दे हर बंदा हो सी, नफसियाती बन जुलसी। असी ये चीज़ां खुद अपने वास्ते खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? अदम बर्दाश्त मादा खत्म, सब्र खत्म, थोड़े तक कनात करना असा नहीं सीखी। अगर किसी को ज्यादा तो और बेहतर दी तलाश में, ज्यादा तो ज्यादा बेशक किसी का हक क्यों ना मारे जो ला, अगर किसी को थोड़ा था उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी का बसेरा करा, उसी के मुताबिक अपनी खाशात जिहड़ी है उसको ढाला। असी जदों लंबी तान बांध के आंदे आ, कमाने वाला अगर है का 10 खाने वाले अगर हो गए तो तब मेरे ख्याल डिप्रेशन का शिकार हो सी, जदों असां दियां खाशां जिहड़ियां ओ लंबियां हो सन। लिहाजा मिलजुल के काम करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे नाल भाईचारे कुव्वत मसवात नाल रहना, और कोशिश करनी है कि काफ़ी जड़ा टाइम आना एक दूसरे नाल अच्छी तरह स्पेंड करना। आते हैं ना कि इंसान हमेशा इतना रहने दुनिया तक रहने वास्ते नहीं आए, एक जिंदगी इम्तहान आ, जिंदगी के अंदर जो कुछ असी बोसा असी कट के जुलसा, ऐसा हरगिज नहीं दुनिया के अंदर दोस्त अहबाब बहुत सारे, लेकिन कब्र दी रात जिहड़ी है बड़ी अकेली है, ना उत्थे कोई बल्ब जलसी। और असा सोना अपने ईमान नाल अपनी कब्र को रोशन करना, उसके अंदर असा ऐसे ऐसे दुनिया का ईमान करने कि ताकि असा को कब्र दी सख्ती जिहड़ी है ना वो कम होवा, असा वास्ते कब्र दी सख्ती, कब्र दी मुश्किलातां ताकि असा वास्ते कम किते जुलन। असा दा कुरान असा को दरस दे रहा है कि दुनिया की जिंदगी जिहड़ी आरजी है, तुसी हमेशा जिहड़ी आखिरत की जिंदगी है वो तुसां को देते जुलसी। ये बहुत कम जिंदगी आ, आरजी है, एक सांस आवा दूसरे का शायद भरोसा नहीं। लिहाजा हर लम्हा यादगार बनाओ और कोशिश करो कि उस लम्हे के अंदर मोती परो, कांटे कदे भी नहीं परोने। और अगर किसी सोने तुसा नाल ज्यादती कर छोड़ी है, किसी सोने तुसा नाल बद इखलाकी कर छोड़ी है, तो लिहाजा तुसा सब्र करना। ऐसा नहीं कि उसका जवाब लड़ाइयां तक आवा, फितने फसादां तक आवा, कहीं और जिंदगियां चली जुलन, यानी किसी चीज़ का जिद जिहड़ी है ना, ये चीज़ शायद माशरे के अंदर ना बहुत बड़ियां बुराइयां जन्म लेंदियां। मुनाफकत असां को नहीं करनी, गिबत असां किसा दी नहीं करनी। असां दा कुरान असां को के तरस दे रहे, असां सिर्फ और सिर्फ उसका मताला करना, उसको असां पढ़ना और उसकी जिहड़ी चीज़ असां को दसी गई उस ही असां सुन अमल करना, उसको अपनी अमली जिंदगी विच कैन करना, ताकि असां वास्ते आसानियां जिहड़ियां न पैदा हो सकन। अज का जोड़ा प्रोग्राम है चनारा की छां प्रोग्राम पहाड़ी प्रोग्राम आ, क्योंकि असी इसका थोड़े जे प्रोग्राम की मुनासबत ना तुसां नाल जिक्र करा कि पहाड़ी प्रोग्राम जड़ा ना ये हर घर के अंदर असी लोकल जबाना तो असा फोकस रखा था, जिस विच सुनो FM 89.4 की टीम गोजरी, कश्मीरी, पहाड़ी, उर्दू और पश्तो प्रोग्राम जड़ा वो पेश करती है। यानी असी इन्हां जबाना तो अपनी लोकल जबाना तो असी बिल्कुल दूर हो गए। हर घर के अंदर बेशक असां कौमी जबान उर्दू है, लेकिन असी मादरी जबान तो बिल्कुल यानी दूर हो गए। असां को जरूर इन्हां नाल अटैच रहना चाहिए, असां दे बच्चों को जरूर पता होना चाहिए कि असां दी मादरी जबान जड़ी है वो किहड़ी है। असी जरूर अपनी जबाना जड़ियां ना लकाई जबाना जड़ियां है असां मुतारफ करवाने वास्ते असां तरह तरह के आरजेस जड़े तुसीं सुनदे हो, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश करते हैं मुख्तलिफ ज़ुबाना के अंदर। और ये महीना जोड़ा 14 अगस्त का महीना आज़ादी का महीना, और इसको असा सुन बड़े जोशो खरोश नाल जड़ा ओ मनाना, मिली नगमिया नाल, दुआवां नाल पाकिस्तान की इस्तकाम वास्ते दुआवां करनियां, मिली नगमिया नाल। और बच्चे जड़े ना बड़े जश्न आज़ादी के शौकीन हैं, छोटे छोटे बच्चे जड़े ना कि वो उन्होंने ज़बान का भी है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
اور کشمیر جڑا پاکستان کی شارک اور ایسا نہیں کہ پاکستان الگ اور کشمیر الگ، ایسا ہر گز نہیں. اور پاکستان تب تک ادھورا جب تک کشمیر دی جڑی اس پار کشمیری لوگوں انہوں دی آزادی جڑی ہے مکمل طور پر نہیں ہوئی. اور پاکستان دے اندر ہر چھوٹا بڑا بچہ مرد و خواتین جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے لوگ جڑا اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور اسی انہاں کشمیریاں نالا مرد و خواتین بچے بزرگ انہاں کشمیری عوام دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ اگر انہوں کو ذرا جی ادھر تکلیف ہوتی ہے یقین کرو کہ وہ تکلیف اساں کو محسوس ہوتی ہے. اور اسی انہوں نال برابر دے شریک ہاں. اگرچہ اساں دی جشن آزادی ضرور اگست مہینہ لیکن اسی کشمیری عوام کو کدے بھی بھول نہیں سکتے ہیں. وہ اساں دے خون وچ رگ رگ وچ اساں دے انہاں دا بسیرا جڑا نا اساں دی رگ رگ وچ موجود ہے. ایک چھوٹی جی بریک دی طرف بڑھتے ہیں پھر واپس آنے اپنے موضوع کی طرف. And celebrate Jashn Azadi with Sohai by Diners. Hurry up and visit store now or shop online at sohai.com. Terms and conditions apply. 5 اگست 2019 وہ سیاہ دن جب بھارت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے کشمیریوں کی حق آزادی کو مزید دبانے کی مضمون کوشش کی. محب وطن کشمیری آج بھی اپنے حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. قید و بند، کرفیو، پابندیاں، مگر آواز دبائی نہیں جا سکتی. یوم استحصال کشمیر 5 اگست کے موقع پر ہماری خصوصی نشریات کی جا رہی ہیں. اس موقع پر سن ایف ایم کشمیر نیٹورک کے ساتھ جڑے رہیے اور محب وطن کشمیریوں کی آواز بنیے. سنو، سمجھو اور آواز بلند کرو، صرف اور صرف سن ایف ایم کشمیر نیٹورک پر. 5 اگست 2019 وہ سیاحت جنوب بھارت سن جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے کشمیریاں دی حق آزادی کو مزید دبانے دی کوشش کی ہے. محب وطن کشمیری آج بھی اپنے حق خود ارادیت دی جنگ لڑ رہے ہیں. قید و بند، کرفیو اور پابندیاں، مگر آواز دبائی نہیں جا سکتی. یوم استحصال کشمیر 5 اگست کے موقع کا اصل دی خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہیں. اس موقع کا سن ایف ایم کشمیر نیٹورک کے نال جڑے رہو اور محب وطن کشمیریاں دی آواز بنو. سنو، سمجھو اور آواز بلند کرو. سن ایف ایم کشمیر نیٹورک کا. اور اب وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آن سنو ایف ایم ریڈیو نیٹورک. جشن آزادی اور مارکہ حق 14 اگست 2025 کے سلسلے وچ سنو ایف ایم کشمیر نیٹورک مختلف نوعیت دے نغمیاں تے مبنی مقابلے دا انعقاد کر رہا ہے. 1 اگست تو 13 اگست دوپہر 12 بجے تک اپنے موبائل کیمرہ تو اپنی خوبصورت آواز وچ ملی نغمہ ریکارڈ کرو اور سنو ایف ایم کشمیر نیٹورک دا اپنے نام اور علاقے دے نام دے نال اساں کو اس نمبر دا واٹس ایپ کرو 05822 532379. منفرد نوعیت دے اس مقابلے وچ کشمیر سمیت ملک بھر اور بیرون ملک تو مرد، خواتین اور بچے حصہ کر سکتے ہیں. جشن آزادی اور مارکہ حق 14 اگست 2025 کے سلسلے میں سن ایف ایم کشمیر نیٹورک منفرد نوعیت کے نغموں پر مبنی مقابلے کا انعقاد کر رہا ہے. 1 اگست سے 13 اگست دوپہر 12 بجے تک اپنے موبائل کیمرہ سے اپنی خوبصورت آواز میں ملی نغمہ ریکارڈ کریں اور سنو ایف ایم کشمیر نیٹورک پر اپنے نام اور علاقے کے ساتھ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجیے 05822532379. منفرد نوعیت کے اس مقابلے میں کشمیر سمیت ملک بھر اور بیرون دنیا سے مرد، خواتین اور بچے حصہ لے سکتے ہیں. جشن آزادی اور
मार्का हक 14 अगस्त 2025 के सिलसिले में सुना एफएम कश्मीर नेटवर्क मुनफरिद नौयत के नगमों पर मबनी मुकाबले का इनेकाद कर रहा है। 1 अगस्त से 13 अगस्त दोपहर 12 बजे तक अपने मोबाइल कैमरा से अपनी खूबसूरत आवाज में मिली नगमा रिकॉर्ड करें और सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर अपने नाम और इलाके के साथ हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 0582232379। मुनफरिद नौयत के इस मुकाबले में कश्मीर समेत मुल्क भर और बैरून दुनिया से मर्द, खवातीन और बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। हसीन जबल वादियाँ, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनोर की तरह, यह तो है कश्मीर जन्नत नजीर और हम है कश्मीर की आवाज सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। जी अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इदा मौजू जड़ा असा वसा कि एहतराम इंसानियत और असंदियाँ जिम्मेदारी जड़ी एक इंसान को दूसरे इंसान था और इस दुनिया और जहान की जिम्मेदारी ये गल जड़ी ओ मुसलमा के इंसान एक इज्तमाही माशरती मखलूक और वो अपनी शख्सियत को तरक्की देने वास्ते इंसानी माशरे का मोहताज है। और दूसरी जानब जदों इंसानी माशरे ते इसका अदबी और इखलाकी भी पाबंदियां जड़ियां वो आयद हो रही होनियां और पाबंदियां उसते इंसानी वजूद के नाल मजबूती नाल जुड़ियां होनियां। हर सलीमुल अकल इंसान जड़ा वो जानदा कि अगर वो दूसरे दी जिम्मेदारियां दूसरी दी चीज़ां अगर अपनी जिम्मेदारियां उन्हां नाल मिल के ना निभासी तो उसको भी हक नहीं कि वो दूसरे तो उम्मीद रखा, यानी अगर कोई दूसरे की जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उसको भी हक नहीं कि वो भी अपनी जिम्मेदारियां जड़ियां नो किसी दूसरे को करवावा उम्मीद रखा या उसकी जिम्मेदारी जड़ी वो कोई और निभासी। अगर असीं किसी और दे नाल इंसाफ नहीं करते हैं तो असां को भी हक नहीं कि असीं अपने हक विच इंसाफ की किसी को जड़ी वो उम्मीद बाकी रखा। इतना कुछ बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी हैं जड़े अपने आप तो गलत साबित होने वाले फाल की तावील करते हैं कि अज़ल तो मुकद्दर और अल्लाह सुन इस वास्ते लिख देता कि उसके यानी बरखलाफ करने की कुदरत जड़ी वो नहीं रखते। इसकी मिसाल है कि हज़रत उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन पूछा कि तो यानी चोरी क्यों की है तो उसने जवाब देता कि अल्लाह ताला सुन मेरी तकदीर में लिख देता असा इसको टाल नहीं सके। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु सुन उसके हाथ कटने और 30 कोड़े जड़े ना उमारने का हुक्म दिता। तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन पूछया कि तुसां सुन इसकी सजा विच ना यानी बहुत ज्यादा चीज़ां बा छोड़ियां कि हाथ भी कटड़े चोरी अगर करा था नाल इसको 3 कोड़े भी मारने। तो उन्हें सुन अगो जवाब देता तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन आख्या कि मैं कोड़े मारने का हुक्म इस वास्ते देता कि इस सुन अल्लाह ताला बहुतान बांधिया और वो किस तरह जानता कि अल्लाह सुन चोरी करना उसकी तकदीर भी लिख देता। इसी तरह किसी वास्ते जायज़ नहीं कि वो अपने सरजद होने वाले जुर्म दी यानी सारियां चीज़ां जड़ियां मुकद्दर और किस्मत का बहाना करा क्योंकि इस तायद जिम्मेदारी कायम रसी और अल्लाह सुन अज़ल तो जड़े इंसान की तकदीर भी लिख देता है दाना वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड आ जिस तो असां दे आज़ाद दारी और इख्तियार तो यानी जड़ी असलियां चीज़ां जड़ियां असीं उन्हों को करते हैं और उन्हें तो जिम्मेदारी निभाने और कुछ अकल रखते हुए भी काम काज करते हैं और कुछ अकल न रखते हुए फिर भी ऐसे ऐसे काम कर छोड़ते हैं जड़े न करने दे होवन। यानी ये चीज़ां सिर्फ असां कोल यानी रिकॉर्ड जड़ा असां दा वो मौजूद आ जिसमें किसी की जबरदस्ती का दखल नहीं होता, कोई जबरदस्ती असां कोल कोई गलत काम नहीं करवाता असीं बल्कि खुद उसको कर रहे होंगे। इस तो मालूम होता कि इंसान अपने हाथ छोटे बड़े फेल के साथ रोने का जिम्मेदार हो खुद और इस वास्ते चाहिए कि उसको अपने हर काम काज करने तो पहले वो जरूर उसका नफा और नुकसान जड़ा ना वो जरूर उसको चाहिए कि वो सुना कि उसके काम काज करने के जड़े तरीकेकार हैं वो किस अंदाज नाल यानी हैं, क्या वो अच्छाई के रस्ते हैं और क्या वो बुराई के रस्ते हैं। एक छोटी जी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं फिर आते हैं अपने मौजू की तरफ कि असां दा जड़ा अज मौजू वो केड़ा
जश्न आज़ादी और मार्का हक 14 अगस्त 2025 के सिलसिले में सुनो FM कश्मीर नेटवर्क मुनफरिद नोयत के नगमों पर मबनी मुकाबले का इनेकाद 2 अगस्त से 13 अगस्त दोपहर 12 बजे तक अपने मोबाइल के